ہیں افواج پاکستان کی شاندار کامیابی کے بعد ملک بھر میں منائے جانے والے جشن سے عیار اور مکار دشمن بھارت کے بزدلانہ حملے نے خیبر تک کراچی عوام کو ایک کر دیا ہے۔ بھارت کے خلاف افواج پاکستان کی تاریخی فتح کے بعد عوام اظہار تشکر اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے باہر نکل آئے۔ فیصل آباد کی فضائیں بھی پاک فوج زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھیں۔ مزید دیکھتے ہیں محمد رضوان عاجز کی رپورٹ میں۔ ممتاز کے ساتھ محمد رضوان عاجز، NTN نیوز، فیصل آباد۔ پاک فوج کے ہاتھوں بھارتی فوج کی عبرتناک شکست پر تحصیل دیپال پور اور اس کے نواحی قصبات کے شہری قومی پرچم تھامے باہر نکل آئے۔ وفاقی وزیر آبی وسائل میاں معین احمد خان، ڈپٹی کمشنر اکاڑہ احمد عثمان جاوید اور دیگر مقررین نے شرکاء سے خطابات کیے۔ مزید محمد احمد بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ دیپال پور تحصیل، اس کے قصبات حویلی لکھا، حجرہ شاہ مقیم اور ضلعی ہیڈ کوارٹر اکاڑہ کے شہری جنگی جنون میں مبتلا بھارتی سورماؤں کی پاکستان کے غیور بہادر شیروں کے ہاتھوں عبرتناک شکست پر سڑکوں پر نکل آئے۔ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ وفاقی وزیر آبی وسائل میاں معین احمد خان وٹو، ڈپٹی کمشنر اکاڑہ احمد عثمان جاوید و دیگر مقررین نے سے خطابات کرتے ہوئے کہا، باسیوں یہ خوشی کا دن ہے، آج آپ سب نے مٹھائیاں بانٹنی ہے، خوشی منانی ہے۔ دیپال پور تحصیل ضلع اکاڑہ کی ریلیوں میں پارلیمنٹیرینز، انتظامی افسروں، شہریوں اور مختلف تنظیموں کے رہنماؤں نے قومی پرچم اور بینرز اٹھا کر بھرپور شرکت کرتے ہوئے اظہار تشکر منایا۔ اس موقع پر فضا پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونجتی رہی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد احمد بھٹی، NTN نیوز، دیپال پور۔ بزدل بھارت کی کارروائیوں کے جواب میں افواج پاکستان نے تگڑا جواب دیا۔ غلہ منڈی کے تاجر اور مزدوروں نے پاکستان اور افواج پاکستان کی جیت کی خوشی میں انوکھا جشن منایا اور مکار مودی کی تصویر گدھے پر لگا کر ریلی نکالی۔ ریلی میں شریک افراد نے پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر عدنان رسول کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ غلہ منڈی کے تاجر اور مزدوروں نے پاک آرمی کے ساتھ اپنی والانہ محبت کا اظہار کیا۔ پاکستان اور افواج پاکستان کی تاریخی کامیابی پر غلہ منڈی میں انوکھا جشن منایا۔ گدھے کے منہ پر مودی کی تصویر لگا کر ریلی نکالی۔ ریلی میں تمام افراد نے تن کے رکھو حافظ صاحب اور پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ پاکستان کی فضائیہ نے جس طریقے سے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر جو بنایا ہے، یہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ جو انڈیا کے ساتھ ہوا ہے، جو اس کی فوج کے ساتھ ہوا ہے، جو مودی سرکار کے ساتھ ہوا ہے، وہ انڈین میڈیا نہیں، انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے۔ پاکستان کے شاہینوں نے جس دلیری کے ساتھ ہندو کا مقابلہ کیا ہے، وہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ اور پاکستان کی فوج ناقابل تسخیر فوج بنی ہے، اور حافظ منیر صاحب جو جنرل پاکستان سپہ سالار ہے، ان کی قیادت میں پاکستان کی فوج نے ثابت کر دیا کہ دنیا کی سب سے بڑی بری فوج، سب سے بڑی مضبوط پاک فوج اور ناقابل تسخیر فوج پاکستان کی فوج ہے۔ قادری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا، لیکن دن کی روشنی میں ہماری پاک آرمی نے بھرپور جواب دیا اور فتح اپنے نام کی۔ ٹھیک رہا ہے۔ مودی گدھے نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی بے عزتی اور بے شرمی پر خوشی کا اظہار کیا۔ ریلی میں شریک تاجر اور مزدوروں نے جیت کا جشن منایا اور افواج پاکستان کی کامیابی پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف سمیت آرمی کے جوانوں کو مبارکباد دی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ عدنان رسول، ڈسٹرکٹ رپورٹر NTN نیوز، خانے وال۔ تاندلیا والا کے نواحی گاؤں 540 گاؤں بے سرانواں کا ایک اور سپوت مادر وطن پر قربان ہو گیا۔ SSG کمانڈو عبد الرحمان گجر کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید کمانڈو آزاد جموں کشمیر میں دشمن آپریشن سے لڑتے ہوئے دوران بنیان المرصوص میں جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ رپورٹ کر رہے ہیں علی حسن صابری۔ SSG کمانڈو عبد الرحمان گجر دشمن کے خلاف وطن کی حفاظت کرتے ہوئے آپریشن بنیان المرصوص میں شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے۔ شہید کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی علاقہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس موقع پر فضا پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ نماز جنازہ میں پاک فوج کے افسران،
RPO फैसलाबाद जीशान असगर, CPO फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर समेत असिस्टेंट कमिश्नर तांदलियावाला, असिस्टेंट कमिश्नर सुमंदरी और सिविल डिफेंस, रुकने कौमी असम्बली सादुल्ला बलोच, रुकने पंजाब असम्बली शाहिद नूर के अलावा हजारों की तादाद में शहरियों ने शिरकत की। शहीद को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी, जबकि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की जानिब से शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए गए और फातिहा खानी की गई। शहादत की इस अजीम मिसाल ने पूरी कौम को ये पैगाम दिया कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। नमाज जनाजा में शिरकत करने वाले शुरका का कहना था कि अब्दुल रहमान शहीद जिस तरह दुश्मन से लड़े, उन्होंने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। शहीद के भाइयों और दीगर रिश्तेदारों का कहना था कि उनकी ये तीसरी नस्ल है जो सरहदों की हिफाजत पर मामूर है। अब्दुल रहमान शहीद ने हमारे समेत पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। ये साढ़े सारा खानदान, दादा, वालिद, मामू, भांजे सब अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से फौज में हैं। मैं खुद एक फौजी रिटायर हूँ, तो मुझे बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि मेरा भांजा जो है वो आर्मी में दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हुआ है। इससे हमारा और फख्र की और क्या बात है। शहीद के भाई जीशान का कहना था कि हमारे लिए ये शहादत किसी एजाज से कम नहीं। शहीद के सोगवारान में 2 कम उम्र बेटियां और 1 बेवा हैं। कैमरा टीम के साथ अली हसन साबरी, NTN न्यूज़, फैसलाबाद। मियां चन्नू में पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक पुरवकाब और शानदार रैली का इनेकाद किया गया। रैली में शरीक शहरियों का जोश खरोश दीदनी था। मजीद अहवाल जानते हैं कमर शहजाद की रिपोर्ट में। पाक फौज के जवानों और हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू साजिदा रज़ाक, MP राना बाबर हुसैन और DSP मोहम्मद सलीम की क़यादत में बल्दिया ऑफिस से T चौक तक रैली निकाली गई। के साथ खड़ी हुई है कि जैसे उन्होंने चंद घंटों और चंद मिनटों में जो उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है दूसरी भारत को, वो अपनी मिसाल आप है और हमारे लिए ये फख्र का बाइस और हमारे उन्होंने वही किया और दुश्मनों के दांत खट्टे किए। कोई भी हमारी तरफ देखेगा तो इसी तरह का जवाब मिलेगा। शुरका ने हाथों में कौमी परचम थामे पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए। जंग से पहले का पाकिस्तान और जंग के बाद का पाकिस्तान बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान ने उस मुल्क का गुरूर तोड़ा है जो बार बार कहता है कि मैं पाकिस्तान को शिकस्त देता हूँ। मैंने हमारी दुनिया तारीफ कर रही है हमारी फौज की, तो हम एक फौजी से लेकर आर्मी चीफ तक सबको मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने। शुरका का कहना था कि पाक फौज न सिर्फ हमारी सरहदों की मुहाफिज है बल्कि हमारी कौमी इज्जत, वकार और सलामती की अलामत भी है। मिर्जा कमर शहजाद, NTN न्यूज़, मियां चन्नू। हिंदुस्तान के छक्के छुड़ाकर अपनी पेशावराना सलाहियतों का लोहा मनवाने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से अहमदपुर सियाल में रैली निकाली गई। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं मलिक हफीजुर रहमान। हिंदुस्तान के छक्के छुड़ाकर घुटने टेकने पर मजबूर करने पर अहमदपुर सियाल में कलमा चौक पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हल्का PP 130 इफ्तिखार खान बलोच, जिले ज्वाइंट सेक्रेटरी सरदार मोहम्मद आरिफ खान कश्मीरी, जिले सदर SMT अरबाब शौकत अब्बास एरी, नायब सदर नासिर अब्बास खान बलोच और महर अख्तर अब्बास ने की। रैली में अब्दुल मजीद कश्मीरी ने भी शिरकत की। शुरकाए रैली ने शानदार फतह पर नारे लगाकर पाक फौज को खराजे तहसीन पेश किया। इस मौका पर खिताब करते हुए इफ्तिखार खान बलोच ने कहा कि हिंदुस्तान को एक बार फिर धूल चटाकर पाक फौज ने साबित कर दिया है कि वो दुनिया की बहादुर तरीन फौज है। सरदार मोहम्मद आरिफ खान कश्मीरी ने कहा कि पाक फौज की हिकमत अमली काबिल सताइश है, जिसने हिंदुस्तानी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देकर उसे छठी का दूध जा दिला दिया। कैमरामैन अरशद साहिल के साथ मलिक हफीजुर। जिला सुंधाना सिंह में पाक फौज से इजहार तशक्कुर और यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया गया। रैली में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने कौमी परचम और बैनर्स भी उठा रखे थे। मुकर्रीन ने रैली से खिताबात करके अवाम का जोश बढ़ाया। मजीद जानते हैं नुमाइंदे तनवीर अहमद शाहीन के रिपोर्ट में। गुजरा शाह मुकीम में पाक फौज से इज़हार यकजहती व इज़हार तशक्कुर के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली इलाका सोना सिंह से निकाली गई, जिसमें ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कामयाबी पर पाक फौज को खैराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर शुरका ने कहा कि असी गुनाहगार तो हो सकते हैं पर गद्दार नहीं हो सकते।
पाकिस्तान पाकिस्तान। रैली के शुरका ने कहा कि पाक फ़ौज ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। पाक फ़ौज ने कामयाब ऑपरेशन करके दुश्मन के नापाक मकासद को खाक में मिला दिया है। जी उधर मियांवाली में पाकिस्तान की तारीखी फतह और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर ज़िले इंतजामिया की जानिब से यौम तशक्कुर मनाया गया। इस मौके पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा करते हुए रैली का इनेकाद भी किया गया। मियांवाली से रिपोर्ट कर रहे हैं हफीजुल्लाह खान। मियांवाली में दुश्मन मुल्क भारत के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने पर ज़िली इंतजामिया मियांवाली के ज़ेर एहतमाम यौम तशक्कुर कौमी जोश और जज्बे से मनाया गया। पाकिस्तान के तरीक साज फतह पर जहां सड़कों पर जिस्म का सामान था, DIG SPR पाक फजाइया और नेवी के सीनियर अफसरान की मीडिया ब्रीफिंग को बड़ी स्क्रीन पर बराह रास्त दिखाया गया। इस मौके पर फिजा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। हज़ारे तशक्कुर के मौके पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया और अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन भी पेश किया गया। डिप्टी कमिश्नर खालिद जवेद गुराया, ज़िले इंतजामिया के अफसरान और शहरियों की कसीर तादाद ने तकरीब में शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर तशक्कुर रैली का इनेकाद भी किया गया। डिप्टी कमिश्नर खालिद जवेद गुराया ने रैली की क़यादत की। इस मौके पर शहरियों ने अफवाज पाकिस्तान के तरीक साज फतह पर सड़कों पर रक्स करते हुए खुशी का इजहार किया। कैमरामैन माजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान, NTA न्यूज़ मियांवाली। आरिफवाला के तारीखी गांव चमनशाह में शहरियों ने पाक फौज की शानदार फतह पर यौम तशक्कुर और जश्न मनाया। पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर भारतीय मीडिया के किरदार को शर्मनाक जबकि पाकिस्तानी मीडिया की जिम्मेदाराना और हकायक पर मबनी रिपोर्टिंग को सराहा गया। मजीद देखते हैं आरिफवाला से नुमाइंदा NTA न्यूज़ हाजी उमैर हुसैन की रिपोर्ट में। आरिफवाला के इलाका थाना अहमद यार के गांव जमन शाह में यौम तशक्कुर भरपूर जोशो खरोश से मनाया गया। शहरियों ने ढोल की थाप पर रक्स किया और आतिशबाजी का मुजाहरा किया। इस मौका पर शहरियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, नाम से करता हूँ जो आजकल मना रही है तहसील आरिफवाला पाक पतन शरीफ थाना अहमद यार से जब जमन शाह जश्न मना रहे जेडे अपने फौजी है या जेडी अपनी हुकूमत है उन्होंने ऐसा शाम नाम करने हैं। नारे तकबीर। शहरियों का मजीद कहना है कि पूरी कौम पाक फौज को खराज तहसीन पेश कर रही है। इन्होंने दावा किया है कि पाक फौज के मौसर हमलों से भारत को भारी नुकसान पहुंचा। इसकी एयर बेसिस और त्यारे तबाह हुए जबकि तकरीबन 200 भारतीय फौजी हलाक हुए। वफाकी वजीर के मुताबिक पाकिस्तान के भरपूर जवाब के बाद भारत ने अमेरिका से सीज फायर की दरखास्त की, जिसे अमेरिका ने पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के जरिए आगे बढ़ाया। पाकिस्तान ने अपने से 7 गुना बड़ी ताकत को इबरतनाक शिकस्त दी है, जिसे भारत की नस्लें भी याद रखेंगी। मुज़ाकरात के हवाला से इन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कतर या अमारात में बातचीत मुतवक्के है, जिसमें बलोचिस्तान में दहशतगर्दी, पानी का मसला और कश्मीर पर बातचीत की जाएगी। इन्होंने भारतीय मीडिया के किरदार को शर्मनाक करार दिया जबकि पाकिस्तानी मीडिया की जिम्मेदाराना और हकायक पर मबनी रिपोर्टिंग को सराहा। कैमरा टीम के साथ हाजी उमैर हसन, NTA न्यूज़ आरिफवाला। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप NTA न्यूज़ के साथ रहिए।